Hello everyone, welcome to Ansarkari. This is the second video of the number system series, and in the first video we discussed the very basics of numbers. In this video we'll be starting with the concept of division. Now the first line says that division is repeated subtraction. So what this means is if we divide a number, for example here we have 63289, and if we divide this number by 43, this means that we are repeatedly subtracting 43 from this particular number, and the number of times that we are subtracting 43 from this number is 1471 times. So quotient is basically the number of times that we are subtracting the divisor from the dividend. This exact thing is written here. For example, when we divide 63289 by 43, it means that 43 can be repeatedly subtracted 1471 times from this particular number, and the remainder is so on is left. So this is the remainder. So रिमाइंडर सिर्फ तब आता है जब हम completely डिवाइड नहीं कर पाते किसी भी नंबर को. जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, it means that we can divide the number completely. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This equation is very important and we need to remember this. तो इसको हम several ways में arrange कर सकते हैं. For example, एक ये लिखा हुआ है कि divisor is equal to this particular thing. Same way में हम remainder भी लिख सकते थे कि remainder is equal to dividend minus divisor into quotient, so on. So in this case, what the questions that can be there are, for example, हमें divisor और quotient दे दिया और remainder and we need to find the dividend. वो directly इस equation से निकल जाएगा. But there can be several other cases. For example, हमें remainder, divisor और dividend दे दिया हो, लेकिन हमें बोला हो कि हमें quotient find करना है, तो वो इसी equation से निकलेगा. We just need to solve it. तो यानी कि यहाँ पे 4 चीजें हैं, तो out of these 4, if we know any 3, we can find out the one that is remaining. Now repeated subtraction. Division we generally use for the case when we need to divide something into, for example, we need to divide a few chocolates into some children. और यहाँ पे repeated division का case भी दिखा रखा है. We'll look upon further questions now. A number when divided by 221 gives a remainder this. What remainder will be obtained by dividing the same number by 17? अब ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर को a number, so we can imagine this number to be x. So when x is divided by 221, the remainder that we receive is 43. तो हमें ये रिमाइंडर मिलता है. तो इसका क्या मतलब है कि जो ये डिविडेंड है यानी कि जो ये नंबर है, इट इज 221 एज वी जस्ट नाउ रेड, डिवाइजर इनटू क्वोशंट. अब क्वेश्चन हमें नहीं पता, ना ही वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस वी कैन राइट द रिमाइंडर. सो दिस इज द पर्टिकुलर केस. अब क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन. तो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे 1 मानकर चलते हैं. तो अगर हम 1 ले लेते हैं, बिकॉज जो भी यहाँ पर ये क्वेश्चन होएगा, जो भी यहाँ पर ये x होएगा, ये बेसिकली मल्टीपल होएगा 221 का प्लस में 43. तो 221 का मल्टीपल होना इम्पोर्टेंट है और प्लस में 43, तभी तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने 1 ले लिया. देन इफ वी ऐड दिस वील गेट 264. तो डिविडेंड को अगर हम 264 माने, देन आगे क्वेश्चन बोलता है व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर. सो दिस इज द सेम नंबर जो हमने अभी निकाला है बाय 17. तो हम 264 को 17 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 9 बचता है. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 9. दैट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जो ये नंबर है इसको हमने x मान लिया. अगर हम इसको 221 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इतना आ रहा है. तो यानी कि ये जो भी नंबर है ये 221 का एक तो मल्टीपल है, क्योंकि वहां तक तो वो डिवाइड हो रहा है, प्लस में वो 43 ज़्यादा है उसके मल्टीपल से. यहाँ पे हमने देख लिया ना कि वो मल्टीपल है, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है तो ऑब्वियसली इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते 221 से, क्योंकि ये छोटा है. तो द सेम वे फिर वो पूछा कि इसी नंबर को अगर हम 17 के बजाय वो कोई और नंबर भी दे सकते थे, तो अगर हम 17 से या किसी और अदर नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है. सो द आंसर फॉर द केस ऑफ 17 विल बी 9. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन.
how many numbers up to 200 are divisible by 2 and 3 both. So the question says that how many numbers, यानी कि 200 तक कितने ऐसे numbers हैं 0 से 200 तक जो कि divisible है 2 से और 3 से दोनों से. तो अभी हमने divisibility rule पढ़ा नहीं है, but what this basically means is if any number is divisible by 3 and 2 both, it will be divisible by 6 because 3 into 2 is equal to 6, right? So in this case what we can do is we can directly calculate कि 200 तक till 200 how many numbers are there which are multiple of 6, which are divisible by 6. 30. If we see 30 numbers तो हो जाएंगे 180 तक. The reason being 6 3s are 18 and then we have 0 here. तो इसलिए 30 यानी कि 180 तक, जैसे हमें 200 तक कैलकुलेट करना है, राइट? सो 180 तक के जो नंबर्स हैं उनमें से तो हमारे पास 30 ऐसे नंबर्स आ गए जो कि डिविजिबल है 6 से. नाउ अप्रोक्सीमेटली वी आर लेफ्ट विद 20. अब ये जो 20 नंबर्स हमारे पास रह गए, फॉर एग्जाम्पल 181 182 etc till 200, out of these if we need to find out that how many are multiple of 6, for this we'll simply think that 6 3s are 6 into 3 is equal to 18. तो यानी कि यहाँ पर 3 और ऐसे नंबर्स होंगे in between, like from 181 till 200 there will be 3 plus 3 more numbers which will be the multiple of 6. So in 30 we'll add 3 which will be equal to 33. So पहले हमने approximation से 180 तक निकाल लिया कि 180 तक का क्या केस रहेगा. आफ्टर दैट जो बाकी के 20 नंबर्स रह गए जो ये हैं, इनका भी हमने निकाल लिया कि 6 से उनमें से कितने नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे. So the answer for this question will be 33. The next question that we have is find the least number of 5 digits which is exactly divisible by 6, 3 and 2. So we all know that जब भी हम least number की बात करते हैं 5 digits के या फिर कितने भी digits के, तो it's like 1 0 0 and so on. अगर वो 3 digit का least number बोल रहे हैं तो 100 हो जाएगा. अगर वो मान लो 10 digits का बोल रहे हैं तो it will be 1 and then 9 zeros, मतलब ऐसे करके. तो जब भी लीस्ट की या फिर स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती है कितने भी डिजिट्स के, तो उसमें 1 और 0 0 इंक्लूडेड होते हैं. एंड इन केस ऑफ लार्जेस्ट हमेशा 9 9 एंड सो ऑन, तो जितने भी डिजिट्स वो बोलते हैं अकॉर्डिंगली. नाउ दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स. तो लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विल बी, अगर हम नॉर्मली देखें तो ये होएगा, राइट, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस थिंग. तो अब हमें इतना पता है कि अगर लीस्ट नंबर बोल रहे हैं 5 डिजिट्स का, अगर ये डिविजिबल नहीं होएगा तो जो नेक्स्ट नंबर डिविजिबल होएगा वो इससे बड़ा होएगा फॉर श्योर, बिकॉज अगर हम इससे छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो वो 4 डिजिट्स का हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव नोटेड हियर. नाउ फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ दिस मेनी डिजिट्स. इट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 632. तो अगर हम इसको ट्राई करते हैं डिवाइड करने का 632 से, द रिमाइंडर दैट वी रिसीव इज 520. यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, विच मीन्स दैट 10,000 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 632. जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है. नाउ डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. आइदर वी सब्ट्रैक्ट 520 फ्रॉम दिस. अगर हम 10,000 में से 520 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो डिविजिबल तो होएगा 62 से, लेकिन वो 5 डिजिट्स का नंबर नहीं रहेगा, इट विल बी ऑफ 4 डिजिट्स. सो दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड. The other option that we have is कि 520. Now what we have to do is we need to subtract 520 from 632. अगर हम 632 में से 520 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112. अब हमें 112 को ऐड करना पड़ेगा 10,000 में. So this will be 10112. So this will be our smallest number of 5 digits. So this will be the smallest number of 5 digits which will be exactly divisible by 632. And now the reason कि हमने subtract क्यों करा, we know that 520 की तो like complete हो गया था, right, 10,000 तक. उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए थी वो वही चाहिए थी जो मिसिंग थी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 632 में से जितना पोर्शन कवर हो गया है 10,000 तक, उसके अलावा जो मिसिंग था जितने भी नंबर्स थे, तो दैट इज 112. That is the reason why we added 112 and hence the answer.
Now the next question requires us to find the greatest number of 5 digits which is exactly divisible by 463. So greatest number जैसे कि हमने भी डिस्कस करा 999 इस फॉर्म में होता है greatest number. तो 5 digit का greatest number will be this, right? Now अब वो पूछ रहा है कि which is exactly divisible by 463. Now this number should be exactly divisible by 463. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर दैट विल रिसीव विल बी 454, विच मीन्स दैट इस नंबर में से अगर हम 454 को माइनस कर देते हैं ओनली देन विल दिस नंबर बी डिविजिबल बाय 463. अब इसमें बोला है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स. तो अगर हम पहले वाला केस लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 463 में से इसको माइनस करके इफ वील एड दैट नंबर टू दिस particular number will become a 6-digit number. But what we need is a 5-digit number. So what we'll do is we'll simply subtract this remainder from the dividend and then we'll receive the number. So after we subtract 454, after we subtract 454 from this number, the answer that we'll receive is 99545. So this will be the greatest number of 5 digits which will be exactly divisible by 463. Now moving on to the next question. Find the number nearest to 13700 which is exactly divisible by 235. Now नियरेस्ट के केस में देर इज नो सच कंडीशन कि ज़्यादा बड़ा हो या फिर वो छोटा हो इस पर्टिकुलर नंबर से. नियरेस्ट के केस में बस ये कंडीशन है कि जब भी हम जो भी रिमाइंडर आ रहा है अगर वो रिमाइंडर इसके हाफ से छोटा है तो हम उसको लेंगे, राइट. वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट अ नंबर विच इज क्लोजेस्ट टू दिस, चाहे वो इससे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इट डजेंट मैटर. सो फर्स्ट व्हेन वी विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर बाय दिस, the remainder that we'll receive will be 70 after dividing. Now 70 obviously is less than half of 235. So what we'll do is we'll simply subtract 70 from 13700. So 70 subtract करने के बाद the answer that we'll receive is 13630. So this will be the number which is nearest to this. अगर ये जो रिमाइंडर है ये बहुत ही बड़ा नंबर आता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आता 200 या फिर 205 ऐसा कुछ आता डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, तो हम ये सोल्यूशन नहीं लेते. तो हम जो छोटा नंबर है फॉर एग्जाम्पल 235 में से हम जो भी बड़ा नंबर आते हैं यहाँ पे उनमें से सब्ट्रैक्ट करते एंड जो स्मॉलर वैल्यू होती, फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर अगर स्मॉलर वैल्यू होती ओनली देन हम उसको सब्ट्रैक्ट करते इस केस में से या फिर ऐड करते. सो इट डिपेंड्स ऑन the number which is nearest to this particular number. Thank you.